Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are solving a problem from class 9. Maths exercise 5.2 question number 3. The question is to maximize the sum condition. Student, first step is to construct the boundary lines. How? We are going to construct the boundary lines by using these two inequalities. First, change these inequalities into associated equation. First associated equation is 2x plus y less than equal to sign change into equation sign equal to 4. This is the first inequality equation. Second, change this inequality equation into associated equation 4x minus y less than equal to change into equal to sign, then mention it equation 2. Now by using equation 1, वी कंस्ट्रक्ट द बाउंड्री लाइन. हम बाउंड्री लाइन के पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. फॉर पॉइंट 1 we always substitute y is equal to 0. Substitute y is equal to 0 into this equation. 2x plus 0 is equal to 4. We get 2x is equal to 4. 2 is coefficient, change side goes on the other side, become 4 by 2. 2 2s are 4, we get x is equal to 2. When we substitute y is equal to 0 into first associated equation, we get the first point 2 and 0. Now for the point 2, substitute x is equal to 0 into the first associated equation. 2x plus y is equal to 4. Substitute x is equal to 0. Always substitute inside the bracket. Plus y is equal to 4. 2 multiplies 0, we get 0. Plus y is equal to 4. We get y is equal to 4. When we substitute x is equal to 0, we get the value of y is equal to 4. By doing this, we get the point 1 and point 2. Now we test that inequality. Test the first inequality. First inequality is 2x plus 4y less than equal to 4. For test, we always substitute x and y both 0. X is equal to 0 and y is equal to 0. Into that inequality, 2, 0 plus 0 less than equal to 4. 2 multiplies 0, we get 0 plus 0 less than equal to 4. 0 plus 0, we get 0 less than equal to 4. As we know that 0 is less than 4, it means that this statement is true for both x and y 0. Students, now for the second boundary line, we use the equation or associated equation 2. Use this equation, now substitute the y is equal to 0 and x is equal to 0, we get the point 3 and point 4. For point 3, substitute y is equal to 0 into the second equation. 4x minus 0 is equal to 2. We get 4x is equal to 2. 4 is coefficient, change side goes on the other side, it becomes 2 by 4. We get 1 by 2. X is equal to 1 by 2. When we substitute y is equal to 0, we get the value x is equal to 1 by 2. We get the point 3. Now for the point 4, substitute x is equal to 0 into the second associated equation. 4x minus y is equal to 2. Substitute x is equal to 0. x की जगह ब्रैकेट में 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे. Minus y is equal to 2. 4 multiplies 0, we get 0. Minus y is equal to 2. We get minus y is equal to 2. माइनस वाई मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है. माइनस वाई का मतलब है -1 मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 2. -1 कॉफिशेंट है, चेंज साइड गोज ऑन द अदर साइड, बिकम 2 डिवाइडेड बाय -1. वी गेट वाई इज इक्वल टू -2. नाउ वी गेट द पॉइंट 4. व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0, वी गेट द वैल्यू y इज इक्वल टू -2. Next step is to test the inequality. Inequality is 4x minus y less than equal to 2.
फॉर टेस्ट विच सब्सटीट्यूट x एंड y बोथ ज़ीरो। हमेशा स्टूडेंट टेस्ट करने के लिए हम x और y की दोनों की वैल्यूज़ को ज़ीरो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। फॉर x की जगह ब्रैकेट में ज़ीरो माइनस y की जगह ज़ीरो लेस देन इक्वल टू टू। 4 multiplies 0 we get 0 minus 0 less than equal to 2. 0 minus 0 we get 0 less than equal to 2. As we know that 0 is less than 2, it means that this statement or inequality is true for the x and y both 0. So mention true. Students, by the solution of these two associated equation, we get this information. इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को यूज़ करते हुए पहली बाउंड्री लाइन को कैलकुलेट करेंगे। देन पॉइंट 3 और पॉइंट 4 को यूज़ करते हुए सेकंड बाउंड्री लाइन कैलकुलेट करेंगे। और जहाँ दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फिजिबल एरिया को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द टेस्ट इन्फॉर्मेशन। फॉर द एक्स वाई प्लेन, स्टूडेंट फर्स्ट यूज योर स्केल and construct a straight vertical line from 0 to 10. Mention the points at 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Make the arrow on the both sides of the vertical line. This vertical line is known as y-axis. Mention y on the both sides of the arrows. Where is 5? Highlight a little bit more. Put your scale at 5 again there. 5 पे ही अपना स्केल वहाँ पे दोबारा रखेंगे. Then construct a straight horizontal line. Plot the point at 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Make the arrow on the both sides of the line. This horizontal line known as x-axis. Mention x on the both sides of the arrow. Where x and y both line cut each other known as origin. Now we mark the points. On the above side of the vertical line, y values are positive and horizontal line के नीचे की तरफ y की वैल्यू नेगेटिव होती है. मेंशन करते हैं y की वैल्यूज़ कहाँ तक हमारी रेंज है, हमने सब्स्टिट्यूट और प्लॉट करनी है. y की वैल्यू सेकंड वैल्यू होती है 0, 4, 0, -2. मीन्स 0 से लेके 4 और -2 तक हमारी रेंज होगी, काफ़ी होगी. 0 है यहाँ पे y की वैल्यू. अबव साइड पॉजिटिव 1, 2, 3 एंड 4. हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं -1, -2, -3 एंड -4. ना एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स को प्लॉट वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं. एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास होंगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास 2, 0, 1/2, 0. मीन्स पॉजिटिव 4 तक और नेगेटिव 4 तक काफ़ी होंगी. मेंशन करते हैं राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3, 4. लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यू -1, -2, -3 एंड -4. Now we plot the first point. First point is 2 and 0. Point 1 is 2 and 0. x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है. x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0. पूरे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है. At x2 plot the point 2 and 0. We get the first point. Our second point is 0 and 4. Means x is 0 and y is 4. On the whole y-axis x की वैल्यू 0 होती है. At y4 plot the point. We get the second point 0 and 4. Now by using your scale join these two points. अपने स्केल को यूज़ करते हुए इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं. And mention the equation of this line which is 2x plus y is equal to 4. Now we plot the point 3. सेकेंड बाउंड्री के लिए हम पॉइंट 3 को प्लॉट करेंगे. फर्स्ट वैल्यू इज़ 1/2, x की वैल्यू 1/2 एंड y वैल्यू 0. पूरे x एक्सिस पे y वैल्यू 0 होती है. नाउ हाउ वी कैन प्लॉट द वैल्यू ऑफ x 1/2. 1/2 मीन्स 0.5. 0.5 0 से लेके 1 के दरमियान मिडल रेंज पे लाई करता है. 0 से 1 के दरमियान मिडल में यहाँ पे हमारा 1/2 होगा. प्लॉट योर पॉइंट देयर एंड मेंशन 1/2, 0. वी गेट द थर्ड पॉइंट एट दिस पॉइंट. Second point of this equation, point 4 is 0 and -2. Means x value is 0 and y value is -2. पूरे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और
y की वैल्यू -2 पे अपना पॉइंट प्लॉट कर देंगे एट दिस पॉइंट -2, 0 -2. We get the fourth point. Now by using your scale join these two points. इन दोनों पॉइंट्स को अपने स्केल को यूज़ करते हुए ज्वाइन करते हैं. These two points, इन दोनों पॉइंट्स को हम यूज़ करते हुए ज्वाइन कर देंगे. We get a straight line. Mention the equation of 4x minus y is equal to 2. Now हमारा जो फिजिबल एरिया होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ एक दूसरे पॉइंट को ये कट कर रहे होते हैं वहाँ से हमारा इन लाइंस का फिजिबल एरिया स्टार्ट होता है. 2x प्लस 4y की लाइन ये है और 4x माइनस वाई की 2 लाइन की लाइन ये है. अब टेस्ट ने डिसाइड करना है कि इनका एरिया ट्रू है तो दोनों का विजिबल एरिया मींस शेडेड एरिया ओरिजिन की साइड पे होगा. बट इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज गिवन एज अ स्टेटमेंट दैट कि दोनों फिजिबल एरिया जो डिपेंड करता है उसकी रेंज जो है वो हमारी x और y दोनों ग्रेटर देन 0 मीन्स दोनों पॉजिटिव है. x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है. इट मीन्स दैट दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है. तो जो हमारा शेडेड एरिया होगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिर्फ इस रेंज के अंदर हम उसको करेंगे. फर्स्ट लाइन हमारी ये है, सेकेंड लाइन ये है. 2x प्लस वाई 4 क्योंकि ट्रू थी तो इसका शेडेड एरिया ओरिजिन की तरफ यहाँ पे होगा जस्ट ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सेकेंड लाइन हमारी ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से. इसका हमारा स्टेटमेंट भी ट्रू थी, टेस्ट ट्रू था. इट मीन्स दैट इसका शेडेड एरिया भी ओरिजिन की तरफ होगा यहाँ पर. वी गेट दिस शेप. नाउ बाय यूजिंग दिस शेप ऑफ द फिजिबल एरिया वी कैलकुलेटेड द मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट. इस शेप को यूज़ करते हुए पहले इसके मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट को कैलकुलेट कर लेते हैं. पहला इसका मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट एट ओरिजिन, ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है इस शेप का. एट दिस पॉइंट वैल्यू हमारे पास क्या है 0 एंड 0. सेकेंड हमारा मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट यूज़ करने के लिए हमारा कॉर्नर पॉइंट ये है इस शेप का, शेडेड एरिया का दिस कॉर्नर पॉइंट है. इस कॉर्नर पॉइंट पे हमारी वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 0. 1/2 0. सेकेंड कॉर्नर पॉइंट देख लिया. थर्ड कॉर्नर पॉइंट हमारा ये है, इसी शेडेड एरिया का ये कॉर्नर पॉइंट है. जो हमारी शेप बनी है इस शेप का दिस कॉर्नर पॉइंट और एट दिस कॉर्नर पॉइंट हमारी वैल्यू है 0 एंड 4. मेंशन 0 एंड 4. फोर्थ कॉर्नर पॉइंट हमारे शेडेड एरिया का ये है बट यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है. सिंपल इजी मेथड क्या होता है कि आप इसकी बाउंड्री लाइंस डॉटेड लाइन गिराते हैं एक्स एक्सिस की तरफ. अगर आप इसकी डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस की तरफ गिराएं तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 क्योंकि ये 1 को टच कर रहा है. और इसी पॉइंट की आप डॉटेड लाइन अगर इस तरफ y एक्सिस पे मैच करें तो यहाँ पे ये 2 को टच कर रहा. 2 को टच कर रहा मीन्स दिस कॉर्नर पॉइंट इज एट x वैल्यू इज़ 1 एंड y वैल्यू इज़ 2. बट इसको सेकेंड मेथड इसको कैलकुलेट करने का क्या है कि इसको साइमल्टेनियसली हम दोनों इक्वेशंस को जिससे कॉर्नर पॉइंट बना रहे हैं ये यूज़ करते हुए हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. अगर हमारे पास ग्राफ की रेंज अकॉर्डिंग टू आवर लिमिट ना हो तो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. अदरवाइज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को डॉटेड लाइन से x एक्सिस पे मिला देते हैं और y एक्सिस पे मिला देते हैं. जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x एक्सिस पे मिल रहा होता है वो उसकी x की वैल्यू होती है उस पॉइंट की, और जहाँ डॉटेड लाइन से वो y पे टच कर रहा होता है वो y की वैल्यू 0.2 होती है. तो हमारा बाय यूजिंग द डॉटेड ग्राफ को यूज़ करते हुए हमारे पास नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट मिला 1 और 2. एक और मेथड होता है अगर हमारे पास आपसे ग्राफ नहीं मिल रहा और डॉटेड लाइन नहीं मिल रहा तो हम इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं. Now students, we solve these simultaneous equations and by the using of the elimination method we find the point of intersection, means we can find the value of x and y both. हम इन दोनों equations को solve करेंगे. कैसे? You can see that plus y minus y can be eliminated if we add the equation 1 and 2. So write the equation, add equation 1 and 2, add equation 1 and 2. दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी 2x प्लस वाई प्लस 4x माइनस वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे 4 प्लस 2 प्लस वाई माइनस वाई कट वी गेट 2x प्लस 4x विच इज इक्वल टू 6x. 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 4 we get 6x. 6 coefficient multiply with the x variable, change side, goes on the other side, it become
डिवीजन 6 डिवाइडेड बाई 6, ये 6 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 कट विद 6 वी गेट x इज इक्वल टू 1. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इक्वेशन 1 इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस y इज इक्वल टू 4. 2 मल्टीप्लाई 1 वी गेट 2 प्लस y इज इक्वल टू 4. अब 2 कांस्टेंट है यहाँ पे. दिस इज पॉजिटिव 2. व्हेन इट चेंज इट साइड, कांस्टेंट अपनी साइड चेंज करता है तो पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव. 4 प्लस 2 चेंज इनटू -2. y इज इक्वल टू 4 minus 2 we get 2. When we solve these two equations, we get the point of intersection. X value is 1 and y value is 2. हमने इन दोनों इक्वेशंस को बाय द यूजिंग ऑफ एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट हो गया 1 and 2. x की वैल्यू 1 एंड y वैल्यू वी कैलकुलेट 2. x इज इक्वल टू 1 एंड y वैल्यू इज 2. सिमिलरली सेम वही कैलकुलेट हुआ जो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर बाय डॉटेड लाइन. जब हमने इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ग्राफ पे डॉटेड लाइन से मिलाया था तो ये पॉइंट डॉटेड लाइन से टच किया था एक्स एक्सिस पे 1 से, और इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने जब वाई एक्सिस से डॉटेड लाइन से टच किया था तो यहाँ पे ये 2 को टच किया था. वी गेट द सेम आंसर 1 and 2 बाय द डॉटेड लाइन ऑफ द ग्राफ एंड आल्सो बाय द सोल्यूशन ऑफ दीज टू साइमल्टेनियसली इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. नाउ अब हमारे पास पॉइंट कैलकुलेट हो गए. पहला पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था. अगर आप दोबारा इस शेडेड एरिया को देखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट कॉर्नर पॉइंट इस फिजिबल रीजन का क्या है 0 0. मेंशन इट 0 0. सेकंड कॉर्नर पॉइंट हमारा इस फिजिबल रीजन का सेकंड कॉर्नर पॉइंट हमारा ये है, दिस कॉर्नर पॉइंट शेड 1/2 and 0. 1/2 and 0. थर्ड कॉर्नर पॉइंट जो अभी हमने कैलकुलेट किया बाय द सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन एंड बाय द डॉटेड लाइन इज 1 and 2. 1 and 2. फोर्थ कॉर्नर पॉइंट हमारा इस फिगर का ये है, दिस शेडेड फिजिबल रीजन एरिया. It's 0 and 4. 0 and 4. Now, by using the visible region, we calculate these 4 corner points. Now we substitute these 4 corner points into this function. इस function को अभी तक पूरे क्वेश्चन में हमने यूज़ नहीं किया. We take this function and substitute these corner point and find out the maximized corner point. The function is z is equal to 2x plus 3y. First we substitute 0 and 0 where x value is 0 and y value is 0. z is equal to 2. x की जगह ब्रैकेट में 0 प्लस 3 y की जगह ब्रैकेट में 0. We get 2 multiply 0 0 plus 3 multiply 0 we get 0. 0 plus 0 is equal to 0. When we substitute x and y both 0 into this function we get the result 0. Now we substitute the second corner point into this function. Z is equal to 2x plus 3y. Substitute 1/2 and 0. 2 x की जगह दिस इज द वैल्यू ऑफ x, सो सब्स्टिट्यूट 1/2 प्लस 3 y की वैल्यू क्या है 0, सब्स्टिट्यूट 0 इनसाइड द ब्रैकेट. नाउ 2 कट विथ 2 वी गेट 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 0. 1 plus 0 we get 0. When we substitute the second corner point we get the result 1 of this function. Now we substitute the third corner point values into the function. 2x plus 3y. थर्ड वैल्यू x वैल्यू इज 1 एंड y वैल्यू इज 2. 2 x की जगह ब्रैकेट में 1 प्लस 3 एंड y की जगह ब्रैकेट में 2. 2 मल्टीप्लाई 1 वी गेट 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 2 वी गेट 6. 2 plus 6 we get 8. When we substitute this third corner point we get the result of this function is 8. Now we substitute the fourth corner point into this function. Z is equal to 2x plus 3y. X value is 0 and y value is 4. Substitute x value is 0 inside the bracket, place 3 and y value 4 inside the bracket. 2 multiply 0 we get 0. 3 multiply 4 we get 12. 0 plus 12 we get 12. When we substitute these corner points, first we get 0. Second corner point we get 1. Third corner point we get 8. Fourth corner point we get 12. Which is the maximum answer?
The last fourth corner point given as the maximum answer 12. So maximize this function at corner point is 0 and 4. Means this function is maximized at, write the statement, this function is maximized at corner point 0 and 4. Because when we substitute 0 and 4 into this function, we get the maximum answer 12. Student, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.